નરેન્દ્ર મોદી દેશને સંબોધન કરવાના છે। દેશને સંબોધનમાં પીએમ ખાસ કરીને 22 તારીખથી જે જીએસટી 2.0 લાગુ થવાનું છે તેને લઈને પણ તેઓ વાત મૂકી શકે છે, કારણ કે જીએસટીમાં જે રિફોર્મ્સ થયા છે, જે સુધારાઓ થયા છે તેને લાગુ કરવા માટે 22 સપ્ટેમ્બરની તારીખ જે છે એ ફાઇનલ કરવામાં આવી છે। એટલે કે 22 તારીખથી જીએસટી 2.0 છે એ અમલમાં આવનાર છે। બની શકે છે કે પીએમ આજે સાંજે જ્યારે દેશને સંબોધન કરશે ત્યારે આ વાત મૂકી શકે છે કે આવતીકાલથી જે નવા સુધારાઓ થવા જઈ રહ્યા છે તેનાથી પ્રજાને કેટલો મોટો લાભ થવાનો છે અને આ જીએસટી 2.0 છે એનાથી કયા કયા સેક્ટરને કેટલો લાભ મળી શકે છે, સાથે સાથે અન્ય કોઈ બાબત દેશને લગતી હશે તો તેના ઉપર પણ પોતાના વિચારો રજૂ કરી શકે છે, દેશને સંબોધન કરી શકે છે। પણ મુખ્ય મુદ્દો જે સૌથી વધારે અત્યારે ચર્ચાઈ રહ્યો છે, બની શકે છે કે પીએમ જીએસટી રિફોર્મ્સ 2.0 ઉપર વાત કરી શકે છે, કારણ કે હમણાં જ જે સુધારાઓ આવ્યા છે તેની અમલની તારીખ 22 સપ્ટેમ્બર એટલે કે નવરાત્રિથી નવા સુધારાઓ અમલમાં આવી જશે એવી વાત છે। જેથી તમે જોયું હશે કે જીએસટીમાં જ્યારે ઘટાડો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને તેના કારણે ઘણી બધી ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, જેમાં દૂધ પ્રોડક્ટના ભાવ ગઈકાલે જ ઘટાડવામાં આવ્યા છે અને તેનો અમલ 22 તારીખથી થવા જઈ રહ્યો છે। એવી જ રીતે જે જીવન વીમો હોય કે મેડિક્લેમ હોય તો તેના પ્રીમિયમમાં પણ જીએસટીમાં જે અત્યાર સુધી 18% કે 28% સુધી વસૂલવામાં આવતા હતા તે હવે ઘટીને 0 થઈ ગયા છે વીમા પોલિસીની અંદર। તો એ વાત પણ સૌથી મોટી રાહત પમાડનારી રહેશે જે લોકો વીમા પોલિસી ધારકો છે અને પ્રીમિયમ ભરી રહ્યા છે તેમના માટે। આવી ઘણી બધી પ્રોડક્ટો છે તેના ઉપરથી જીએસટીના જે સૌથી વધારે કર વસૂલવામાં આવતા હતા એ હવે ઓછા થયા છે અને તેનાથી નાગરિકોને એક મોટી રાહત મળવાની છે। બની શકે છે કે આજે પીએમ સાંજે 5 વાગે જ્યારે દેશને સંબોધશે ત્યારે આ વાત રજૂ કરી શકે। का आज के राष्ट्र के नाम संबोधन का सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है, वो जनता से कोई अपील भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो तमाम बातें उठ रही हैं कि अमेरिका के साथ जो डील हो रही है, जो वीजा पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने एक नया कानून लगा दिया ज्यादा पैसे देने का। तो मुझे नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पचड़े में प्रधानमंत्री अभी पड़ने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए, कैसे पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जाए कि हमें अपने ही बनाई वस्तुओं को, अपने विक्रेताओं को और अपने लेबर, अपने मजदूर वर्ग को जो इन चीजों को बना रहा है उनको कैसे सहूलियत, उनको अपना सामान खरीदकर उनको कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं। अपने देश में बनी चीजों को हम खरीदेंगे। हम 140 करोड़ का भारत है और अगर पूरा का पूरा भारत अपने बनाई चीजों को खरीद रहा है, अपने देश में घूम रहा है, पर्यटन कर रहा है, तो ये आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री इसी सेकंड जनरेशनल जो जनरेशनल चेंज होने वाला है, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, उसके ऊपर जरूर बोलेंगे आज। बिल्कुल, जिस तरीके से अमिताभ सिन्हा તો આજે સાંજે 5 કલાકે પીએમ દેશને સંબોધન કરશે અને તેમાં જે દેશના મહત્વના મુદ્દાઓ છે તેના ઉપર તે વાત મૂકી શકે છે, પ્રજાને અપીલ પણ કરી શકે છે। જે રીતે આત્મનિર્ભર ભારત માટે પીએમએ ગઈકાલે ગુજરાતની મુલાકાત દરમિયાન પણ વાત કરી હતી કે હવે બીજા દેશ ઉપર નિર્ભર રહેવું આપણા માટે નુકસાનકારક છે અને એટલા માટે જ સ્વદેશી વસ્તુઓ અપનાવી અને આત્મનિર્ભર ભારતને મજબૂત બનાવવાથી વિશ્વમાં ભારતની સ્થિતિ મજબૂત બની શકે છે। આ વાત ઉપર પણ તેમની સંબોધનની અંદર તેઓ ભાર મૂકી શકે છે। સાથે સાથે જીએસટી રિફોર્મ્સને લઈને પણ તેઓ આજે સાંજે પોતાની વાત મૂકી શકે છે, કારણ કે જીએસટી રિફોર્મ્સ એક मजबूत चेंज है। क्या कह देंगे वो, क्या उनके पिटारे में क्या है देश की जनता के लिए, लेकिन जब भी उन्होंने ऐलान किया है देश की जनता ने उनका पालन किया है। चाहे कोरोना के समय थाली बजाने का हो, चाहे बाकी मौकों पर घर के बाहर थाल बजाने का हो, जनता ने उनको फॉलो किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कल एक बड़ा जनरेशनल रिफॉर्म्स, यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक बड़ा रोल आउट होने वाला है भारत में, वो भी जीएसटी रिफॉर्म्स का। तो जहां तक टैरिफ की बात है, यूएस टैरिफ की बात है, ये वीजा अमेरिका के लगाए जा रहे प्रतिबंधों की बात है, ये दुनिया के उन तमाम देशों को करारा जवाब होगा जब भारत की जनता अपने आत्मनिर्भर बने, अपने उद्योग आत्मनिर्भर बने, अपने विक्रेता आत्मनिर्भर बने, अपने देश की बनाई हुई चीजों पर लोगों का जोर हो और उसी को लोग खरीदें। भारत पूरी दुनिया को ये दिखा देगा कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधारों के बाद
भारत अपने दम पर, अपने बल पर कैसे आगे बढ़ सकता है। टैरिफ का जिक्र, इन यूएस टैरिफ का जिक्र भले ही सीधे तौर पर न करें, लेकिन इतना जरूर पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री जरूर संदेश दे देंगे, भारत को ये संदेश दे देंगे कि अगर अपनी बनाई चीजों पर आगे बढ़ना है तो अपनी बनाई चीजों को खरीदें। लोगों से अपील कर सकते हैं कि जैसे ही जीएसटी रोल आउट होता है, आप आइए और कल कुछ ना कुछ सामान खरीद के आप दिखाइए, सोशल मीडिया पर डालिए कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये चीजें, मुझे लगता है मुख्य मुद्दा यही है। टैरिफ अब जाहिर है, टैरिफ लगाए जो गए हैं उसका मुकाबला भारत अपने देश में बाजार को आगे बढ़ा के कर सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं, वो भी एक बड़े महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के चंद घंटों पहले। कल सुबह से 22 तारीख की सुबह से ये जीएसटी रिफॉर्म रोल आउट होने वाले हैं, तो मुझे लगता है ध्यान उस पर होगा, लेकिन इशारा पूरे दुनिया का होगा। તો મૂળ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે આજે સાંજે 5 વાગે સંબોધન કરશે ત્યારે એ જીએસટી રોલઆઉટની વાત હોય કે પછી આત્મનિર્ભર ભારતની વાત હોય, સ્વદેશી વસ્તુઓને અપનાવવાની વાત હોય અને ખાસ આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ હોય તેના ઉપર પણ એક ફોકસથી વાત મૂકી શકે છે। જો કે હાલ તો એ શક્યતા ઓછી છે કે તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓને લઈને દેશને કોઈ વાત મૂકે, પણ દેશના જે મુદ્દા છે ખાસ કરીને નવીનીકરણ, ખાસ જીએસટી 2.0 જે નવા રિફોર્મ્સ આવ્યા છે, નવા સુધારાઓ જીએસટીમાં કર માળખામાં કરવામાં આવેલા છે, તેનાથી એક મોટો ચેન્જ આવવાનો છે 22 તારીખથી, કારણ કે નવરાત્રિના પહેલા દિવસથી નવા જીએસટી કર સુધારા લાગુ થવાના છે અને તેના કારણે દેશમાં ઘણા બધા લોકોને ચીજ વસ્તુઓમાં फायदो થવાનો છે। लेकिन जो भी इटारे से निकलता है वो देश हित में होता है, जनता के हित में होता है। आप नोटबंदी के जमाने से लेकर आज तक देख लो, जितने भी प्रधानमंत्री ने इस तरह के राष्ट्र के नाम संदेश दिया है वो कुछ न कुछ देश हित में था, जनता के हित में था, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही था, देश में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए ही था। तो जाहिर है कुछ ऐसा ही संदेश प्रधानमंत्री देंगे। आज जब दुनिया में अमेरिका भारत पर काफी दबाव बढ़ा रहा है, भारत ने चीन और रूस के साथ जाकर संदेश दिया है, प्रधानमंत्री खुद गए थे, बिना कहे बिना बोले यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए एग्रीमेंट किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ एफटीए एग्रीमेंट किया है। तो ये चीजें बता रही है कि भारत अमेरिका के बाहर भी अपनी दुनिया तलाश रहा है और ऐसे व्यक्तिगत एक देश पर भारत निर्भर रहना भी नहीं चाहता। ये संदेश पूरी दुनिया को दे चुका है और रूस के साथ उसकी दोस्ती जग जाहिर है, रूस अभी भी साथ खड़ा है भारत के। ऐसे में भारत, जब पीयूष गोयल और पूरी टीम अमेरिका जा रही है, जयशंकर अभी अमेरिका में यूएनजीए को लेकर, मुझे लगता है ज्यादा कूटनीतिक बातें वही होंगी। प्रधानमंत्री का इशारा साफ होगा कि इन टैरिफ का हमारे देश पर कोई असर नहीं पड़ने देना चाहिए। इसके लिए वो देश की जनता का साथ मांगेंगे, देश के उनको बाजार जाने का आह्वान करेंगे। जो भी टैक्स रिफॉर्म्स पिछले कुछ दिनों में हुए, एंटी स्लैब में कमी आई है, जो जीएसटी रोल आउट होगा इसमें कीमतें कम होगी, तो जाहिर है बाजार में पैसा आएगा और प्रधानमंत्री चाहते हैं ये पैसा बाजार में ही आए और बाजार में ही लगे और आम जनता बाहर निकलकर अपने देश की बनाई चीजों को खरीदे। ऐसा नहीं है कि विदेशों में बनाई चीजें खरीदे। अगर मेड इन ताइवान और मेड इन इंडिया लिखा हुआ, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया लिखा हुआ, मेड इन यूएस, मेड इन इंडिया लिखा हुआ, वहाँ पब्लिक मेड इन इंडिया को ही प्रेफर करे। ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री की अपील होगी और ऐसे ही अगर भारत की जनता अपने बाजार की ताकत दिखाएगी, अपने क्रय शक्ति दिखाएगी, तो मुझे लगता है ये उन देशों को, अमेरिका को सीधा संदेश होगा कि टैरिफ बढ़ाने का भारत पे कोई असर नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ जनता भी बहुत मजबूत है।